Hello learners, welcome to MDC Learning. Let us try to solve one question together जहाँ पे आपके पास ये question में एक अलग ही variety है students. ठीक है? Let us read and understand the question first because एक बार ये question समझ में आएगा तो solution करना easy हो जाता है. ठीक है? So a building contractor, कोई एक building का contractor है, provide you the following records about the contract. Which commenced on 1st April 2017, expenses incurred up to 31st December were. Okay, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कब शुरू हो रहा है चेक करो 1st अप्रैल को शुरू हो रहा है commenced on 1st April that means 1st अप्रैल को वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है and the expenses up to the date of 31st December 2015 were these. ठीक है, यानी 1 अप्रैल को ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू होकर के 31 दिसंबर 2017 जिस दिन आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है, ठीक है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है तब तक के लिए आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है. So we have material purchase of 21,500. It's an expense, so it appeared on the debit side. Again, we have wages paid of 50,110. ठीक है. Again, it will shows on the debit side. Then we have foreman's salary. Again, the debit side because these are the expenses. As you already know कि है ना अपने पास जो भी expenses आते हैं हम क्या करते हैं उनको debit side पे record करते हैं. So material purchased, debit side, wages paid. Again on the debit side, we have administrative expense. Again on the debit side, machinery purchase. Again you have to record this on the debit side. After that, a supervisor with a monthly salary of ₹1000. कोई एक सुपरवाइजर है जिसको हर महीना 1000 रुपए सैलरी देते हैं, has spent about half of the time on this contract. इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने उसका आधा टाइम दिया है. ठीक है, तो ओवरहेड्स में अपन ने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है ना सॉल्व किए. टाइप के क्वेश्चन यानी ऐसी जो लाइनें हैं सुपरवाइजर को यानी कितनी सैलरी देनी है, ऐसे ट्रीटमेंट हमने ओवरहेड्स में किया है. तो आपको अगर याद होगा तो कि लाइक जो कुछ भी उसकी सैलरी होगी जितने भी महीनों की, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम चला है अप्रैल से लेके दिसंबर, तो जस्ट काउंट लाइक अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ ये कॉन्ट्रैक्ट चला है. तो अपने को इसको 9 मंथ की सैलरी देनी है, बट उस 9 मंथ की टोटल सैलरी को अपने को हाफ देना है बिकॉज ही डिवोट ओनली हाफ टाइम फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट. Then we have material at site on 31st 12 2007, that is at the end of the year we have material at site worth rupees 2480. The machinery purchase was used for 73 days. ठीक है students, this information is given for the calculation of depreciation. Then we have estimated life of machine is 5 years and estimated scrap value is 1000. एक estimated life of machine है 5 year की, estimated scrap value is 1000. The contract price was fixed at rupees 2,20,000. This is your total contract price of rupees 2,20,000. And on 31st December 2017, 2/3 contract was completed. ठीक है, 2/3 contract was completed. Work certified worth rupees 1,20,000 and rupees 90,000 have been paid in account. तो ये आपके पास वर्क सर्टिफाइड है और ये आपका कैश रिसीव्ड है. वर्क सर्टिफाइड जो हम कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं. एंड व्हाट अबाउट दिस कैश रिसीव, दिस इज यूज्ड इन अ फॉर्मूला. So our first duty is to make a contract account, to make a format for contract account which I already prepare. ठीक है, प्रिपेयर करके ऑलरेडी रख दिया है बच्चों. इसमें इसको डेबिट क्रेडिट लिखना बाकी है. सो हियर इट इज योर डेबिट, ये रह जाएगा आपका डेबिट, और यहाँ पे लिखना है अपने को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या है 31st December 2017. okay, contract account for the year ended 31st December 2017 and it is credit. okay, चलो now let us start with the calculation के साथ start करेंगे बच्चों. see I have a question so that I can record all the expenses on the debit side. material purchased का value है 21,500. after that I'm having wages paid which is 50,110. after that I'm having foreman salary which is 6,130.
After that I have administration expenses, which is 12,610, and then I have machinery purchased worth रुपये 15,000, और उसके बाद सुपरवाइजर का सैलरी कैलकुलेट करना है, ठीक है। सुपरवाइजर की सैलरी कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हर महीना हम उसको 1,000 रुपया दे रहे हैं और उसने आधा टाइम हमको डिवोट किया है, ठीक है। तो फॉर एवरी कैलकुलेशन वी हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट वर्किंग नोट स्टूडेंट्स, ठीक है। अलग से वर्किंग नोट बनाना है, which I already give the heading and I prepared. See here, 1,000 सुपरवाइजर की सैलरी है, 9 months उसको पेड करना है out of 12 and उसका भी हाफ कर देना है. So on the calculator take 9,000 into 1,000 into 9 divided by 12 into how much? 1 divided by 2. So that will comes to rupees 375. तो ये अपन ने लिख दिया, सुपरवाइजर का सैलरी is 375. Then we have depreciation on plant, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ऊपर पहले इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से बता दूं, फिर डेप्रिसिएशन के वर्किंग नोट के लिए मैं आपको वापस स्क्रॉल डाउन कर दूंगी। तो अपन को यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, हमारा पूरा नहीं हुआ है, तो जस्ट व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग इज वी परचेज्ड अ मशीनरी, दैट्स व्हाई वी इनकर्ड द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। हमने मशीनरी परचेज किया, इसलिए मशीनरी का कॉस्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए परचेज किया, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने मशीनरी परचेज की है 15,000 की। तो ये मशीनरी परचेज करने के बाद हमारे पास ये 15,000 की वैल्यू हमको डेबिट साइड पे एज इट इज रिकॉर्ड करनी है एज एन एक्सपेंस, ठीक है। और उसके बाद हम इसी प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। क्यों डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम तो कॉस्ट और WDV रिकॉर्ड करते हैं, बट नहीं, कॉस्ट और WDV रिकॉर्ड ना करके हम यहाँ पे डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज आपने इस मशीनरी को यूज किया, यूज करने के बाद फिर इसका एज इट इज की वैल्यू को बचा करके रखा है, ठीक है। और वापस अभी तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, और क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको इसका WDV अभी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिकॉर्ड द appreciated वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो आई हैव प्रिपेयर वन सेपरेट वर्किंग नोट फॉर दैट, ठीक है, अलग से वर्किंग नोट बना रखा है मैंने। लेट अस पुट द वैल्यूज एंड डू द कैलकुलेशंस। सी मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला कौन सा वाला? ओवरहेड्स में लगाया था हमने ये फॉर्मूला, तो आई होप यू ऑल आर रिमेम्बरिंग दैट, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, ठीक है। सो वी हैव अ कॉस्ट ऑफ 15,000 minus we have a scrap value which is given in the question, that is after 5 years the scrap value is estimated to rupees 1,000. So 1,000 is the estimated scrap value and estimated life of assets is 5 years, ठीक है, 5 साल चलेगा। इतना कैलकुलेशन करने के बाद फिर आपको आंसर क्या आएगा, देखो, that 15,000 minus 1,000. So 15 minus 1 gives you 14,000. 14,000 divided by 5 करोगे तो you will get 2,800. But you have used this money only 23 days. So 2,800 multiply by 73 divided by 365. टोटल 365 डेज में से सिर्फ 73 डेज ही आपने उसको यूज किया। सो 2,800 multiplied by 73 divided by 365. I've done the calculation. I'm getting the answer of rupees 560. So this 560 is considered as your depreciation on plant and machinery, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे 560। आफ्टर दैट अपने पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज फिक्स्ड अप टू रुपीज 2,20,000 और 31st को 2/3 ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट गेट कंप्लीटेड, ठीक है, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गेट कंप्लीटेड। मटेरियल एट साइट एट द एंड ऑफ द ईयर, ये एक हम रिकॉर्ड करना भूल गए बच्चों। मटेरियल एट साइट एट द एंड ऑफ द ईयर वो रुपीज 2,480, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास वर्क इन प्रोग्रेस के अलावा मटेरियल एट साइट रिकॉर्ड करोगे 2,480। यू हैव टू रिकॉर्ड मटेरियल वर्क सर्टिफाइड रिकॉर्ड करना है, तो वर्क सर्टिफाइड के लिए
वर्क सर्टिफाइड के लिए आपको आ जाएगा, क्वेश्चन में ही दिया है आपको, वर्क सर्टिफाइड है आपका 1,20,000, ठीक। सो इट्स 1,20,000। वर्क अनसर्टिफाइड नहीं पता, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। मटेरियल एट साइड का मैंने आपको बोला 2,480, ये आपका वैल्यू। अब वर्क अनसर्टिफाइड पता कैसे करते हैं, ठीक है। सो आई हैव प्रिपेयर्ड अनदर वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो यू हैव टोटल वर्क कंप्लीटेड, टोटल वर्क कंप्लीटेड इज 2/3 ऑफ 2,20,000। कैसे पता, क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में कहाँ पे दिया है, देखो पहले पढ़ लो फिर। द एस्टिमेटेड लाइफ, अच्छा यहाँ से, on 31/12/2017 2/3 कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, करेक्ट। यानी मैं बोलूं कि 2,20,000 का 2/3 काम जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक। 2,20,000 का 2/3 वर्क यू ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो जब कैलकुलेटर पे 2,20,000 into 2 डिवाइड बाय 3 आप करोगे तो कैलकुलेटर भर के आंसर आएगा, दैट इज 1,46,667, 1,46,667, which is a figure with decimal points of 666 at the end of the, ठीक है। तो आपने अगर इसको राउंड ऑफ करके लिया 14,667, तो दैट विल बी ओके, ठीक है, राउंड ऑफ करके लोगे तो। लेकिन फिर सारे ही फिगर्स जो है वो आपको ऐसे ही राउंड ऑफ कर करके लिखना पड़ेगा और फिर आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा डेसिमल पॉइंट की वजह से। सो व्हाट वी आर प्रेफरेबली डूइंग इज, या तो आप सब में से यानी ये डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए सिर्फ 1,46,000 ले लो या 1,47,000 ले लो, ठीक है। अब 47,000 ले लेंगे तो ज्यादा बेटर है। क्यों 147 ज्यादा बेटर है, क्योंकि 6,666.66 है, ठीक है। तो नो डाउट आपको 44.44 कम है। So better what we are doing is we are taking this value as 1,40,000. We are taking this value as 1,47,000. 1,47,000. Here it is. 1,47,000. So work certified. So we are taking this figure as 1,47,000। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब कितने का कंप्लीट है, ये वैल्यूज यहाँ पे, ठीक है। 1,47,000 का काम कंप्लीट हो गया है, 1,47,000 का काम कंप्लीट हो गया है। तो वर्क सर्टिफाइड यानी आर्किटेक्चर ने कितने का सर्टिफिकेट दे दिया, 1,20,000 के लिए आर्किटेक्चर ने भी अप्रूव कर दिया यानी सर्टिफिकेट दे दिया। सो इसका मतलब 1,47,000 माइनस 1,20,000, तो आपके पास जो कुछ भी वैल्यू बचेगी वो वैल्यू आपकी कौन सी होगी, वो वैल्यू आपकी होगी वर्क अनसर्टिफाइड की, ठीक है, अनसर्टिफाइड। तो कैलकुलेटर पे ले लो 1,47,000 माइनस 1,20,000, इट गिव्स यू 27,000, which is nothing but your work uncertified। ये क्या है आपका, ये है आपका वर्क अनसर्टिफाइड। जाओ 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 ऊपर फॉर्मेट में, एंड वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू मिल चुकी है, जस्ट राइट इट डाउन 27,000, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा। चलो अब आगे आते हैं क्वेश्चन में, क्या बाकी है, द ओनली वर्क इज लेफ्ट इज टोटलिंग, ठीक है, टोटलिंग है। तो चलो टोटलिंग करना है, तो करते हैं। लेट अस टेक द टोटल फॉर दिस, ठीक है। कैलकुलेटर पे ले लो 1,20,000 प्लस 27 प्लस 2,480, this will give you the total of 1,49,480, ठीक है। ये 480 लास्ट में है ना, so 1,29,480, that will be, no it's 49, it's not 29, it's 49, 1,49,480। जो हैवी होता है उसको हम दोनों साइड पे लिखते हैं 480। चलो टेक द टोटल फॉर डेबिट, डेबिट साइड का टोटल करो 21,500 प्लस 50,110 प्लस 6,130 प्लस 12,610 प्लस 15 प्लस 375 प्लस 560 gives you टोटल वैल्यू, एंड माइनस कर देंगे 1,49,480, तो वी आर गेटिंग द नोशन।
So debit side total will be 1,06,465 और वहां से माइनस कर लेंगे 149,480 तो हमको मिलेगा क्या नोशनल प्रॉफिट. So this is your notional profit. ठीक है 60 डाउन करके और notional profit 1,06,465 minus 1,49,480 will give you 43,015 rupees. So 43,015. This will be your notional profit. Then we have to calculate how much of the notional profit to be transferred to profit and loss account and how much to be kept as a reserves. Since your work has been completed up to how much percentage, let us check into the question. ठीक है 2/3 बोल दिया है कि 2/3 कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट है. ठीक है तो 2/3 के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 multiply by cash received divided by work certified. So how much is the notional profit? It's 43,015 multiply by 2 divided by 3 then multiply by cash received. How much is the cash received? It's given in the question. It's 90,000 divided by work certified. We just calculated. No, we are not calculating. It's already given in the question. It's 1,20,000. We calculated work uncertified. The certified is in as 1,20,000. ठीक है फिर आगे आ जाओ is equal to ये कैलकुलेशन सॉर्ट करोगे तो you will get the value of 21,508. 21,508. So this is the value which you are going to transfer to profit and loss account. तो इसको लिख दो ऐसा ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये आपका ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया. एंड फॉर रिजर्व्स हाउ मच इज द नोशनल इज 43,015 रिजर्व्स में. ठीक है 43,015 is your reserves minus profit minus profit and loss account 21,508 is equal to 43,015 minus 21,508 आपको मिलेगा 21,507. ठीक है 21,507. This is the value which you are going to transfer to your reserves. So let us put the entries in our account. ठीक है ऐसे क्वेश्चन will be asked for 15 marks. 15 मार्क का ये क्वेश्चन है. ठीक है सो बाय नोशनल प्रॉफिट अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 43,015. come to the debit side. how much value you get 21,508 मिला आपको किसके लिए 21,508 मिला मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए और 21,507 मिलेगा मुझे रिजर्व्स के लिए. सो योर यू विल गेट योर क्वेश्चन टू बी कंप्लीटेड. ठीक है ऐसे करके आपका ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो जाए. विल सॉल्व मोर क्वेश्चन in the next videos.